CNN 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं रवि शुक्ला। पेश है साप्ताहिक सुर्खियां। सिलचर शहर के मेहरपुर में पिता ने अपने नवजात बेटे को पत्नी से छीनकर भागा। पिता ने नवजात पुत्र को मां की गोद से छीनकर फरार हो गया। इस घटना से मेहरपुर शिवालिक पार्क क्षेत्र में कोहराम मच गया। बच्चे की मां मीना ग्वाला ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए अपने पति के खिलाफ सिलचर रांगीखाई थाने में मामला दर्ज कराया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसका पति जिस घर में काम करता था वहां से उनके 3.5 साल के बेटे ओम दास को जबरदस्ती छीनकर भाग गया। चीख पुकार मचने से पहले ही सुदीप अपने बेटे को लेकर भाग गया। फिर कुछ देर बाद अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। मीना ग्वाला को कुछ साल पहले सुदीप दास से प्यार हो गया था और बाद में उन्होंने शादी कर ली थी। पति शराबी है और पीने के बाद अक्सर उसकी पिटाई करता था। वह पिछले 2 महीने से अपने बच्चे को लेकर अलग रहती थी। मेहरपुर शिवालिक पार्क থাকি। আমার স্বামীর নাম হইল সুদীপ দাস। আমার ছেলে 4 বছরের। আমার ছেলের লইয়া আমি আলাদা ঘর ভাড়া লইয়া থাকি। আমার ছেলেরে আইয়ে সকালে 7:30টায় উঠাইয়া দুজন মানুষ, একজন আমার স্বামী আর একজন একটা বেটি আসলো, তারা দুজনে মিলিয়ে আমার ছেলেরে তুলিয়া লইয়া গেছে। এখন আমার ছেলেরে দেয় না। না আমারে কইছে আমি ওমরে লইয়া যাইরাম, তুই আমার কাছে আইবে। ওমরে যত সময় তুই যত সময় আইতে না অত সময় ওমরে আমি তোরে দিতাম না। ফোন করলে খালি কয় অমুক জায়গাত আছি, মোবাইল সুইচ অফ করিয়া রাখি। মাইক দাঙ্গা করে, মদ খায়, ইয়ে করে, অত্যাচার করে ঘরের মাঝে। আমি মানুষের বড় কাজ করি, আমি আমার ছেলেরে লইয়া এখন পর্যন্ত তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে না? আমার কোনো যোগাযোগ তার লগে নাই। আমি ফোনও করি না, আমি খবরও লই না কই আছে না আছে। ছেলেরে নেওয়ার পরে যোগাযোগ হয়েছে? হ্যাঁ, ছেলেরে নেওয়ার পরে যোগাযোগ হয়েছে, কিন্তু আধা ঘন্টা 10 মিনিট ফোনে মাতে, এরপরে মোবাইল সুইচ অফ করিয়া আবার রাখি দেয়। কিন্তু সত্যি ঠিকানা কয় না কই আছে। ছেলে কত বছর? 6 বছরের। কিতা হচ্ছে? ছেলে জীবনই আনিয়া কইছে আধা ঘন্টার ভিতরে কইছে আনিয়া দিব। আধা ঘন্টা খালি সুইচ অফ করে দিয়েছে আর মোবাইল খালি সুইচ অফ করিয়া রাখি দেয়। कछार पुलिस ने 200 बोरी बर्मी सुपारी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कल शाम कछार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। कछार पुलिस ने 200 बोरी बर्मी सुपारी समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया। कछार पुलिस ने सिकचर तारापुर 2 नंबर रेलवे गेट के पास बर्मी सुपारी से भरे 2 ट्रक और बर्मी सुपारी को शहर से बाहर निकालने में मदद करने वाले एक वोलिनो कार सहित 5 लोग गिरफ्तार किया। कछार जिले के पुलिस अधीक्षक नोमल महत ने बताया कि जब बर्मी सुपारी का बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए के करीब है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करते हुए पुलिस ने अवैध व्यापार के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि कछार पुलिस बर्मी सुपारी के अवैध व्यापार को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेगी। पुलिस ने सख्त जांच शुरू कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक नोमल महत ने उम्मीद जताई कि जांच जारी है तथा और भी जानकारी सामने आएगी। इस बीच गिरफ्तार किए गए 5 लोगों में से कलाइन क्षेत्र के रहने वाले सलीम अहमद और धोलाई क्षेत्र के कृपेश दास को पुलिस ने हिरासत में रखा है। बाकी 3 लोगों के नाम को गुप्त रखा गया है ताकि जांच में कोई व्यवधान पैदा ना हो। पकड़े गए दोनों ट्रकों का नंबर JS10 BG7340 S11 AC2686 तथा नीले रंग की कार ML10B8883 है। এদিকে আমরা সামনে দিয়ে ঢুকছে, একটা লাল কালার টি-শার্ট, একটা ইয়েলো কালার টি-শার্ট এদিকে গেছে, লাল কালার টি-শার্ট এদিকে গেছে। আমি ওই গলি আপোনালোকে জানে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সকলো ধৰণৰ যি ইলিগেল বা অবৈধ যি সৰবৰাহ তাৰ বিৰুদ্ধে জিৰো টলাৰেঞ্চ তেওঁ ঘোষণা কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াত কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বাৰ্মিজ সুপাৰী যি অবৈধ সৰবৰাহ তাৰ বিৰুদ্ধে আমি ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে কেইবাটাও অভিযান আমি চলাইছোঁ। আৰু তাৰ এটা বিশেষ অভিযান স্বৰূপে আজি আমি এটা গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি
দুখনকৈ ডাঙৰ ট্ৰাক তেওঁলোকে অবৈধ বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ তাত লৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা এই জিলাৰ মাজেদি তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু আমি এই গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি আজি তেওঁলোকৰ ব্যক্তিকেইজনৰ সৈতে আমি 5জন ব্যক্তি, 2খন ট্ৰাক আৰু এখন আমি সৰু গাড়ী য'ত তেওঁলোকে আগতে তেওঁলোকে কিছুমান নিৰীক্ষণ কৰি তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰে, সেই নিৰীক্ষণ কৰি যি সৰবৰাহ কৰা গাড়ী আমি ইতিমধ্যে চিজ কৰিছোঁ আৰু 5জনকৈ লোকক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও আমাৰ অনুসন্ধান অব্যাহত আছে। আৰু এই সময়ত আমি দেখিছোঁ যে প্ৰায় 200টা বেগৰ অবৈধ বাৰ্মিজ চুপাৰী তেওঁলোকে লৈ ইয়াৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু এই অবৈধ চুপাৰীৰ যি দাম হ'ব, কেলকুলেটেড দাম হ'ব, সেই দামৰ মূল্য প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ ওচৰা ওচৰি হ'ব। গতিকে আমি তেওঁলোকক আটক কৰিছোঁ। যিকেইজন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ, যি আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ, কিন্তু এজনৰ নাম হ'ল তাৰ ছালেম আহমেদ। ছালেম আহমেদ, তেওঁৰ ঘৰ হ'ল বিহৰা আৰু কালাইন পুলিচ ষ্টেচনৰ এৰিয়া, আৰু দ্বিতীয়জন হ'ল কৃপেশ দাস। কৃপেশ দাস, তেওঁৰ ঘৰ হ'ল বাঘাবাজাৰ। আৰু তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ, তেওঁলোকক আমি আৰু সোধপোছ চলাই আছোঁ। আৰু তাৰ লগতে আৰু 3জন ব্যক্তি যি তেওঁলোকৰ ৰাস্তা তেওঁলোকে চাই যায় আৰু ৰাস্তাৰ ক্লিয়াৰেঞ্চ তেওঁলোকে দিয়ে, তেওঁলোককো আমি আটক কৰিছোঁ। আৰু তদন্তৰ খাতিৰত এতিয়া আপোনালোকক আমি নামখিনি জনোৱা নাই, কাৰণ আমি ইয়াৰ লগত আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অভিযান আমাৰ চলি থাকিব, গোটেই নিশালৈকে চলি থাকিব। গতিকে সেই কথাখিনি আপোনালোকক জনোৱা নাই। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ইয়াৰ পৰা কি কি বিষয় আৰু লাভ কৰিম আৰু কি তথ্য পাম সেইবিলাক আপোনালোকক আমি জনাম। কিন্তু সদ্যহতে আমি এটা কথা কৈছোঁ যে আমি অবৈধ বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ বিৰুদ্ধে আমি সৰব হৈ আছোঁ আৰু কোনো পৰিস্থিতিতে এই চুপাৰী যাতে আমাৰ জিলাৰ মাজেদি সৰবৰাহ কৰিব নোৱাৰে, অবৈধ বেপাৰ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সচেষ্ট হৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি বদ্ধপৰিকৰ। पत्नी और बेटी की हत्या के आरोप में जवान गिरफ्तार। एक सिपाही ने चंद मिनटों में ही धारदार हथियार से अपनी पत्नी और नवजात बेटी की हत्या कर दी। शनिवार को सिलचर शहर से कुछ दूरी पर श्रीकोना क्षेत्र के असम राइफल्स के कैंप में दर्दनाक घटना हुई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। असम राइफल्स के एक जवान ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी और 11 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। हत्यारे जवान का नाम रविंद्र कुमार है, जम्मू से श्रीकोना में ट्रांसफर होकर आया था। जानकारी के अनुसार रविंद्र कुमार ने अपने घर में ही धारदार हथियार से पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। धारदार हथियार से लहूलुहान होकर मां बेटी जमीन पर गिर पड़ी थी। रविंद्र कुमार हत्या करने के बाद मंदिर में छुप गया था। कैंप के अन्य जवानों और पड़ोसी ने उसे पकड़कर श्रीकोना थाने को सूचना दी। जांच अधिकारी ने कहा कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जवान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया है। हत्यारे रविंद्र कुमार ने कहा कि कुछ आंतरिक पारिवारिक विवादों के चलते उनकी हत्या कर दिया। बाद में उसे सिलचर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। इस बीच मां और बेटी के शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। सिलचर तारापुर पुलिस चौकी ने मंगलवार रात गुप्त सूत्रों के आधार पर नाका चेकिंग कर कछार पुलिस और सीआरपीएफ बटालियन का संयुक्त अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में 30 कार्टून बर्मी सिगरेट और बर्मी मच्छर भगाने का गौरजिला कॉइल जब्त किया गया। कछार पुलिस ने मीडिया को सूचित किया कि उन्होंने गुप्त सूत्रों के आधार पर परिवहन विभाग के नाइट सुपर और मैजिक टाटा वाहन से सिगरेट के पूरे कार्टून बरामद किया। नाइट सुपर गाड़ी संख्या AS 012934 रात के अंधेरे में रामनगर बाईपास पर अवैध बर्मी सुपारी लोड करते हुए सीआरपीएफ बल और कछार पुलिस द्वारा पकड़ा गया। CRP লগত লৈ পেলাই মানে মোৰ ষ্টাফ আৰু বি কোম্পানী 147 ডিএন CRPF যিটো ISBT আছে তেওঁলোকক লৈ পেলাই আমি নাকা চেকিং কৰি আছিলোঁ। কিবা এটা ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ যে কোনো বাৰ্মিজ চুপাৰী ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন হ'ব পাৰে। বাৰ্মিজ চিগাৰেট আৰু মানে বাৰ্মিজ মানে দুখ পাতি বুলি কয়। হয় হয়। তো এটা মানে চুপাৰ নাইট চুপাৰ যিটো আপোনালোকে দেখিছে তাৰ নাম্বাৰ হ'ল AS 01 80 2934 এইটো ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হৈছে
ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি যিটো এতিয়াও আমি ভালকৈ কাউণ্ট কৰিব পৰা নাই, মোৰ দেন 30 কাৰ্টন মানে চিগাৰেট আৰু ধূপকাঠি তাতে মানে লোড হৈ আছে। আর এই গাড়িটো ইয়াতে আহি মানে পার্ক করে রাখিছে। আর এই যে যেটো মানে আপনার ম্যাজিক ট্রাক আছে, এই ম্যাজিক ট্রাকটোত তাৰ পৰা মানে ট্ৰান্সপোৰ্টেশ্যন কৰি ক'বাত লৈ যায়। ইমানলৈকে এতিয়া মই ক'ব পাৰিম, ফাৰ্দাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। আর বাকি আমার অথরিটি মানুহ কিমান ডিটেইন হৈছে? মানুহ মানে নাইট চুপাৰৰ ড্ৰাইভাৰজন ডিটেইন কৰিছে। আচ্ছা, আৰু এই গাড়ীটোৰ ড্ৰাইভাৰ নাই, এই মানে অলৰেডি পলাই গেছে। सोनाबारी घाट के दूसरे समुदाय के युवक के साथ भागी युवती सैदपुर की रहने वाली युवती ने पुलिस के दबाव में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी युवक की मां शुक्रवार दोपहर उसे राईखारी पुलिस चौकी लेकर आई। हालांकि युवती ने कहा कि सनी मजूमदार ने उन्हें जबरदस्ती नहीं ले गया, न ही बहलाया फुसलाया, न अपहरण किया। वह स्वेच्छा से उसके साथ गई थी क्योंकि उसके साथ लंबे समय से प्रेम संबंध है। यह अपहरण या जबरदस्ती का कोई सवाल नहीं है। सनी मजूमदार पुलिस के सामने अपनी राय रखने के लिए बार बार थाने आ चुका है। गौरतलब है कि हिंदू संगठनों ने इस घटना को लव जिहाद करार दिया था। আমি আমার নিজের ইচ্ছায় আইছি, আর সবাই কইরা যে আমি মানে অন্য কেউ মানে জোর করিয়ে আনছি, কিন্তু আমি তো আমার নিজের ইচ্ছায় আইছি। ইচ্ছাকৃত আমি ভাবে আমি কাজটা করছি, এখানে কেউ ফোর্স করছি না, মানে আমি আমার ইচ্ছা মতো। আমার নাম রলি রয়। দিন আমার জুড়ে নেওয়া হয়েছে না, আমি আমার নিজের ইচ্ছায় আইছি। কিন্তু অনেকে তো তোমারে ফুসলাইয়া তারা নিছে। ফুসলাইয়া কেউ নিছে না, আমি কল করিয়া কইছি আমার নেওয়া লাগিয়া। আর আমিটাও কইছি যে তারা ফ্যামিলি মেম্বার কারোর না জানানির লাগি আমি আমার নিজের ইচ্ছায় আইছি। আজকে কিতা কররা? আজকে আমি স্টেটমেন্ট দিতে আইছি, যারা যে মিথ্যা কথা কইয়া তারা ফাঁসা নিয়ে হয় এই কথা লাগে আমি স্টেটমেন্ট দেওয়ার লাগে আইছি। কিন্তু অনেকে তো তোমারে ফুসলাইয়া তারা নিছে। ফুসলাইয়া কেউ নিছে না, আমি কল করিয়া কইছি আমার নেওয়া লাগিয়া। আর আমিটাও কইছি যে তারা ফ্যামিলি মেম্বার কারোর না জানানির লাগি আমি আমার নিজের ইচ্ছায় আইছি। আজকে কিতা কররা? আজকে আমি স্টেটমেন্ট দিতে আইছি, যারা যে মিথ্যা কথা কইয়া তারা ফাঁসা নিয়ে হয় এই কথা লাগে আমি স্টেটমেন্ট দেওয়ার। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने 1 साल के भीतर संरक्षक मंत्रियों को जिला बदला। बराक घाटी के 3 जिलों की जिम्मेदारी उनके 2 सबसे भरोसेमंद मंत्रियों के हाथों में छोड़ा गया है। अशोक सिंगल की जगह जयंत मल्ला बरुआ को कछार जिले का संरक्षक मंत्री बनाया गया और हैलाकांदी जिले के संरक्षक भी रहेंगे। पीयूष हजारिका को करीमगंज जिले के संरक्षक मंत्री बनाया गया है। जल संसाधन, जनसंपर्क, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हजारिका सोनीतपुर और विश्वनाथ के नए संरक्षक मंत्री होंगे। जन स्वास्थ्य तकनीकी मंत्री जयंत मल्ला बरुआ कछार हैलाकांदी के अलावा धुबरी जिला के भी संरक्षक मंत्री होंगे। बराक घाटी के एकमात्र परिमल शुक्लवैद्य को 2 जिले नगांव और होजाई का संरक्षक मंत्री बनाया गया। सिलचर नगर पालिका में अचानक हुए नए नियम मूल्य वृद्धि पर तृणमूल नेता और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शुक्रवार दोपहर सांसद सुष्मिता देव ने तारापुर स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और टैक्स बढ़ोतरी को बिल्कुल गलत कदम बताया। उन्होंने कहा कि टैक्स में इस तरह की बढ़ोतरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्यों सांसद और विधायक पूरे टैक्स वृद्धि को लेकर खामोश हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस जरूरत पड़ने पर टैक्स वृद्धि के खिलाफ आंदोलन करेगी। तृणमूल नेता ने शुक्रवार को स्वमूल्यांकन फार्म जमा करने के सिलचर नगर पालिका के आदेश के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने जिलाधिकारी रोहन कुमार झा से मुलाकात की और कहा कि कछार जिला संरक्षक मंत्री जयंत मल्ला बरुआ से भी फोन पर बात हुई है। उन्होंने शिकायत किया कि नवनिर्वाचित बोर्ड के बिना सिलचर नगर पालिका ऐसे निर्णय नहीं ले सकती है जो लोगों की राय के अनुरूप न हो। सुष्मिता ने भविष्य में इसके खिलाफ एक मजबूत आंदोलन खड़ा करने की धमकी दी है। দেখা করেছি কারণ আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম যে একটা সিটিজেন্স মিট ডেকে সবাইকে বুঝিয়ে বলা যে ট্যাক্সের ব্যাপারটা কি, কারণ কোনো ইলেক্টেড পৌরসভা নেই। আমার কিছু প্রশ্ন রয়েছে স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে। আপনারা শিলচরে কর্পোরেশন করবেন, কিন্তু 1 এপ্রিল 2020-তে এই ইলেক্টেড বোর্ডটার টেনিওর শেষ হয়ে যায়। আপনারা এত মাস দেরি করার পরে ক্যাবিনেট মিটিংয়ে এনে বলেছেন যে শিলচর কর্পোরেশন হবে। ইলেকশন আপনারা ডিলে করেছেন, ডিলিমিটেশন আপনারা ডিলে করেছেন, এখন আপনাদের ট্যাক্সের জন্য এত তাড়া কেন? যেখানে ইলেক্টেড বডি নেই, আমার প্রথম প্রশ্ন, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কমিটি একটা থাকে যারা সেলফ অ্যাসেসমেন্টের কাজটা করে, যেটার চেয়ারম্যান ডিসি থাকে এবং
ইলেক্টেড চেয়ারম্যান আর ভাইস চেয়ারম্যান সেটার মেম্বার থাকে। যেখানে ইলেক্টেড চেয়ারম্যান আর ভাইস চেয়ারম্যান নাই, এই ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কমিটি কিভাবে কাজ করছে? এটা পুরো বেআইনি। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, আপনারা শিলচরের জনসাধারণকে ট্যাক্স দিতে বলছেন, ওরা কোনো নতুন ট্যাক্স দিচ্ছে না। এই সেলফ অ্যাসেসমেন্টটা লাগু হয়েছিল আমার সময়, যখন আমি চেয়ারপারসন ছিলাম, কংগ্রেসের বোর্ড ছিল, তখন থেকে মানুষ ট্যাক্স দিচ্ছে। আমি ডিসি, এসপি, প্রত্যেকটা সরকারি দপ্তরকে বলতে চাই, সরকারি কলেজ, স্কুল, আপনারা কি পৌরসভাকে প্রপার্টি ট্যাক্স দিচ্ছেন নাকি আপনারা নিজের সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করেছেন নাকি? আমি আজকে ডিসিকে জিজ্ঞেস করতে চাই, এসপিকে জিজ্ঞেস করতে চাই, এএসইবিকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনারা এত বড় বড় বিল্ডিংয়ে বসা, আপনারা ট্যাক্স দিয়েছেন নাকি মিউনিসিপ্যালিটিকে, যে আপনারা শিলচরের মানুষকে বলছেন ট্যাক্স দিতে? কারণ আমি যখন পৌরসভা নেত্রী ছিলাম, তখন আমি ডিসি, এসপির সঙ্গে 10টা 12টা করে মিটিং করে বলেছিলাম আপনারা ট্যাক্স, মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স দিন। তো আমি আজকে ঘোষণা করলাম যে এই ফর্মে যে তথ্যটা চাইছে, এই তথ্যটা আমি একটা খালি কাগজে লিখে দিতে রাজি আছি, কারণ আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে, নাহলে পরিষেবা হবে না। কিন্তু অগণতান্ত্রিকভাবে কোনো ইলেক্টেড পার্সন যখন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে নেই, পৌরসভাতে নেই, এই ট্যাক্স লাগু করার কোনো মানে হয় না। এবং একটা কথা বলছি যে আমাদের বরাকভ্যালিতে এত এত এমএলএ, এমপি আছে, এমএলএদের ডিসির অফিসের দরজায় দাঁড়াবার দরকার নেই, আপনারা আরবান ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টারের কাছে যান। আপনারা ডিসির কাছে কেন যাচ্ছেন? ডিসিকে নোটিফিকেশন দিয়েছে, ডিসি নোটিফিকেশন পালন করছে, ডিসিশনটা তো স্টেট গভর্নমেন্টের। আজকে আমি জয়ন্ত বড়ুয়া, যিনি এখনই চার্জ নিয়েছেন কাছাড়ে, ওনার সঙ্গে ফোনে আলোচনা করে এই প্রবলেমটা বলেছি যে সিটিজেন্স মিট করেন বা এখন অ্যাসেসমেন্টটা করবেন। শিলচরের সাংসদ এবং শিলচর সমষ্টির এমএলএ আজকে নিশ্চুপ এই ব্যাপারে। ওদের উচিত ছিল মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করা, সিএম এর সঙ্গে দেখা করা, যে ইলেকশনের পরে এটা হোক। ওদের ডিএনএতে পাবলিক সার্ভিস নেই, ওদের ডিএনএতে শুধু সেলফ সার্ভিস আছে। এটা একবার না, বারবার প্রমাণ হয়েছে, ফ্লাডের সময়ও হয়েছে, আর এখনো আবার হলো। सिलचर में 2 करोड़ की लागत से बराक घाटी के इतिहास को संजोए रखने के लिए संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को सिलचर में एक कार्यक्रम में यह बात कही। सदियों पुराने पारंपरिक सिलचर नॉर्मल स्कूल को हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में मान्यता मिलने जा रही है। इस स्कूल से संरक्षित पांडुलिपियों को वैज्ञानिक संरक्षण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाएगी। घाटी की इन पांडुलिपियों के अलावा विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक चीज़ों के संरक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल में एक संग्रहालय बनाया जाएगा। संग्रहालय के निर्माण के लिए 80% भुगतान केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय की अगली बैठक में सरकार सामान्य स्कूलों से जुड़े सभी मामलों में अनुदान देने का फैसला करेगी। केंद्रीय राज्य संसदीय एवं संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को सिलचर शहर में राज्य स्तर पर नई शिक्षा नीति कार्यशाला के समापन समारोह में यह आश्वासन दिया। कार्यशाला मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान कोलकाता की पहल और मानव विकास अध्ययन केंद्र असम विश्वविद्यालय के सहयोग से राजीव भवन में राज्य स्तर पर आयोजित की गई थी। कि यहाँ के शासकों ने, कछार के शासकों ने इतनी अच्छी चीजें सुरक्षित रखी, जिसमें रामायण भी है, महाभारत भी है, बंगाली साहित्य भी है, असमी साहित्य भी है, भारत का पुरातन साहित्य भी है, सब सुरक्षित रखा, हैंडमेड पेपर पे लिखा। अभी वो जो साहित्य है उसको ठीक करने का थोड़ा बहुत काम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज ने किया, लेकिन मुझे लगता है काफी काम बाकी है। तो जो आपने प्रस्ताव भेजा है हमारे मंत्रालय को, मोनोस्क्रिप्ट मिशन को, उसका लेटर हमें देना। मैं इस मंच से कहता हूं कि आपके जितने भी मोनोस्क्रिप्ट है उसको ठीक करने का काम संस्कृति मंत्रालय करेगा, चाहे कितना ही पैसा लगे, उसकी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है, इसको हमें जिंदा रखना है, उसको हमें संरक्षण देना है, उसको बचाना है। कि किस तरह का 350 साल पहले, 400 साल पहले हमारा साहित्य लिखा गया, क्या था वहां पे, पेपर बनाने का क्या साधन था, हैंडमेड पेपर, देखिए क्या साधन था लिखने का, इंक बनाई गई होगी, केमिकल कंपोजिशन किया गया होगा, उस समय में थोड़ा साइंटिफिक माइंड किसी ने लगाया होगा। लिखने के लिए कलम नहीं होगी तो कोई नेचुरल कोई किसी पौधे से, किसी से चीज लेकर के उसको लिखा गया। ताम्रपत्र में देखा मैंने, तो ये बहुत रिच लिटरेचर यहाँ है, इसका हम काम करेंगे। दूसरा बड़ा काम करने का मन कर रहा है, नॉर्मल स्कूल में 2 डिमांड है।
एक डिमांड है कि इनको हेरिटेज बिल्डिंग घोषित किया जाए। ये 100 साल पुरानी हो गई ना, 1906 की है। आप भी चाहते हो सब हेरिटेज बिल्डिंग घोषित हो? आप भी चाहते हो क्या? चाहते हो या नहीं चाहते हो? प्रिंसिपल साहब तो चाहते हैं, बाकी चाहते हैं नहीं चाहते हैं? आप भी सब चाहते हो ना? तो इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन दूसरा काम बड़ा करेंगे कि सिलचर और उसके आसपास बराक वैली तीनों जिलों में जो अच्छे हमारे आजादी के स्वतंत्रता संग्राम के हीरोज हुए, अच्छे साहित्यकार हुए, कभी हमारे महापुरुष यहाँ विजिट किए। मुझे बताया गया महात्मा गांधी भी कभी सिलचर आए, सुभाष चंद्र बोस भी कभी सिलचर आए। यहाँ के लोगों ने भी खेलों में, सेना में नाम कमाया। ऐसा सारा इतिहास संजोते हुए या बहुत अच्छा एक म्यूजियम बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। कॉलेज में सहायक प्राध्यापकों को प्रवेश करने से रोका गया। शिक्षक धरने पर बैठ गए। कछार कॉलेज के एक शिक्षक धरने पर बैठ गए। कछार कॉलेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर आनंद चंद्र घोष को कॉलेज में प्रवेश करने नहीं दिया गया। गेट के सामने धरने पर बैठ गए। तब राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर घोष ने उनके सामने विभिन्न आरोप लगाए। बुधवार सुबह जब वह कॉलेज पहुंचे तो उन्हें दोबारा प्रवेश नहीं दिया गया। विरोध में कॉलेज के सामने बैठ गए और अंत में आश्वासन मिलने पर धरना समाप्त कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कॉलेज में प्रवेश करने से रोका गया तो वह कॉलेज के सामने भूख हड़ताल बैठेंगे और उन्हें कहा कि बिना कोई कारण बताए उन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया गया। छात्र क्लास तो करना चाहते हैं लेकिन वे भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा शासी निकाय के सदस्य होने के बावजूद उन्हें कई महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। কলেজে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এই ঢুকতে না দেওয়ার কারণ কি আমি জানি না, এবং গভর্নিং বডিতে আমি ইলেক্টেড মেম্বার ছিলাম, কিন্তু প্রিন্সিপাল স্যারে আমার একটা মিটিংয়েও ডাকে নাই। আর এই যে আমি যে ক্লাসে আসতে পারি না, ছাত্রছাত্রী আমার সবসময় ফোন করে, আমি অবশ্যই অনলাইন ক্লাস করি, কিন্তু অনলাইন ক্লাস দিয়ে তো সব হয় না। এটা তো ছাত্রছাত্রীর অনেক লস হচ্ছে। প্রিন্সিপাল স্যার আমার উপরে যেগুলি করেছে এই সমস্ত কিছু দিয়ে আমি গুয়াহাটি হাইকোর্টে আপিল করেছিলাম। মহামান্য হাইকোর্ট বলে দিয়েছে all actions taken by the principal is invalid। কি অভিযোগ এটা আমি জানি না, কারণ ম্যানেজমেন্ট রুলের কোথাও নেই যে কোনো অভিযোগ থাকলে, কোনো কিছু থাকলে কলেজে ঢুকতে দেওয়া হবে না, এটা তো কোথাও লেখা নেই। অনেক দিন ধরে আমি আসতে পারছি না, মাঝখানে তো করোনার জন্য আসিনি। তারপরে এবার যখন করোনাটা খুললো, করোনার খোলার পরে আমি চিঠি দিলাম, হাইকোর্টের অর্ডার সাবমিট করলাম, কিন্তু তবুও উনি আমাকে ঢুকতে দেয়নি। আমার দাবি হচ্ছে যে আমার প্রতি গত 3 বছর ধরে যে অন্যায় অবিচারগুলি হচ্ছে সেই সমস্ত অন্যায় অবিচারের আমার বিচার লাগে এবং আমাকে কলেজে ঢুকতে দিতে লাগে। কলেজের যে ছাত্রছাত্রী আছে তাদের বৃহত্তর স্বার্থ। যদি না দেওয়া হয় তো আমি অনশন করব, আমি আমার উপর মহলকে জানাবো। बराक हिंदी साहित्य समिति ने बराक घाटी के 3 जिलों के विभिन्न स्तरों के 140 छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजदीप ग्वाला के तत्वाधान में दिनेश प्रसाद ग्वाला स्मृति सम्मान मेधावी छात्रों को दिया गया। मुख्य अतिथि में उपस्थित थे हैलाकांदी जिले के प्रमुख शिक्षाविद लक्ष्मी निवास कलवार, नेहरू कॉलेज के प्रोफेसर शुभजीत चक्रवर्ती, महावीर प्रसाद जैन, कुंज बिहारी ग्वाला आदि। तीनों जिलों के विभिन्न हिस्सों के हिंदी भाषी छात्रों को माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक और पीएचडी छात्रों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व विधायक राजदीप ने चर्चा की कि कैसे छात्र अपनी पढ़ाई में सुधार कर सकते हैं और अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। हाल ही में अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने अपने अनुभव का वर्णन किया और कहा कि भारत के कई नियम और नीतियां अमेरिका के तुलना में बेहतर हैं। जो है उनके साथ मीटिंग में उनके स्टेट असेंबलीज हमने विजिट किया, फिर उनके कुछ बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से हम मिले, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट, सिएटल टाइम्स, ऐसे कुछ प्रिंट मीडिया के बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुआ। और वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलोराडो स्टेट की, उनके साथ मुलाकात हुआ। वहाँ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे, उनके साथ मिला। तो बहुत लंबा प्रोग्राम था, 3 हफ्ते का, और एक्सप्लोर करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। यही सबसे बड़ा चीज़ मुझे, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सीखने को मिला। मैं वहाँ पे गया था कि कुछ सीख पाऊँ। और जब भी आप कुछ नए जगह पे जाते हैं, बहुत सारे नोशंस थे यूएस के बारे में, वो बदल गए वहाँ जाने के बाद। कुछ पता नहीं था, उसके बारे में पता चला। वो अभी यूएस भी काफ़ी चैलेंजिंग टाइम से गुजर रही है। उनका यहाँ पे भी काफ़ी रिसेशन चल रहा है, और पहले जैसे यूएस का मोनोपोली या सुपर पावर थी, वो आज के दिन में नहीं रहा, क्योंकि आज के दिन में चाइना, इंडिया भी
काफी आगे निकल रहा है। तो काफी चैलेंजिंग टाइम है उनके लिए भी, तो उनको भी हमने अपने बारे में बताया, कुछ उनके सिस्टम में क्या क्या चीजें बदली जा सकती हैं उसके बारे में हमने बताया। मुझे लगा कि हमारे देश में जो सिस्टम बना हुआ है, मुझे लगता है कि वो उससे कई ज्यादा अच्छा सिस्टम है। मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मैं CNN 24 की साप्ताहिक सुर्खियों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।